آج ایک چھلا دیا جائے گا جس کا ثبوت بھی میں پیش کروں گا. خود امام الاولیاء شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے، اللہ کے ولیوں کے بھی اماموں کے بھی امام ہیں شاہ ولی اللہ، ان کے ساتھ ثبوت پیش کروں گا. بعض اوقات انسان کو علم کی ناواقفیت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے انسان بدگمانی اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ انسان جب ڈھل جاتا ہے اور اولاد جوان ہو جاتی ہے اپنے غم بھول جاتا ہے. اسے اولاد کے نصیب کے لیے، اولاد کے مقدر کے لیے، اولاد کے بخت کے لیے، اولاد کی عزت کے لیے، اولاد کے وقار کے لیے زندگی چاہیے، زندگی چاہیے. پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اس کی جان ہے یا نہیں ہے، اس کا لقمہ ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، اب اسے اولاد کے لیے کچھ چاہیے. زندگی میں سب کچھ دے سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو، سب کچھ دے جاتے ہیں. لوگ کوٹھیاں دیتے ہیں، لوگ بنگلے دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں، مال دولت دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں. اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو دینا کوئی جرم تو نہیں ہے. ڈگریاں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، نوکر بھی دیتے ہیں، غلام بھی دیتے ہیں، گائے بھی دیتے ہیں، بھینس بھی دیتے ہیں، جہیز میں اولاد کو اونٹ بھی دیتے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دے جس نے اولاد کو بخت اور نصیب اور مقدر بھی ساتھ دیا ہو. ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ بھر کے زیور دیا. یہ بٹے کو یوں کیا اور اس میں زیور ڈالتا گیا، ایسے اٹھا کے ڈالتا گیا. لوگ حیران. زیور دیا. اس دور میں گاڑی دی، جب گاڑی 21,500 روپے کی آئی، اتنی 21,500 روپے کی گاڑی آئی، گاڑی دی، بنگلہ دیا، مال دیا، نعمتیں دیں، نہ معلوم کیا کچھ دیا. لیکن آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ بیٹی مجھ سے زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے. اس کے شوہر کے بے روزگاری کا غم اور اس کے گھر میں بے برکتی. عالم یہ ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں کوئی چوڑی نہیں، کوئی انگوٹھی نہیں، سب زیور بک گیا ہے، سب بنگلے ختم ہو گئے ہیں، سب دولت ختم ہو گئی ہے، سب مال ختم ہو گیا ہے، ہر چیز لٹ گئی ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دعا ہے جو میری بیٹی کا بخت، نصیب اور مقدر جاگ اٹھے. میں نے سب کچھ دے کے دیکھ لیا اور اب اولاد جوان ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بیٹے کہتے ہیں ابا بہن کو کب تک بھرے گا؟ اس کی اولاد جوان ہو گئی ہے، بیٹی کی اولاد جوان ہو گئی ہے کہ ابا بہن کو کب تک بھرے گا؟ اب ہمارا حق ہے، اب ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے اور میں اولاد سے چھپ چھپ کے بیٹی کو دیتا ہوں. اب میرے پاس بھی ختم ہو گیا ہے. کوئی ایسا ہے کہ میری بیٹی کا بخت، نصیب اور مقدر جاگ اٹھے. اور میرے دل سے اس وقت آہ نکلی، اے کاش یہ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں اگر 12 نفل پڑھ لیتا اور زندگی کا معمول بنا لیتا. اس میں بخت بھی ہے، اس میں نصیب بھی ہے، اس میں مقدر بھی ہے، اس میں قرضوں سے نجات بھی ہے، اس میں رزق میں ترقی بھی ہے، اس میں دولت میں ترقی بھی ہے، اس میں برکتوں اور رحمتوں کے عالی شان محلات اور تاج ہے. 12 اور 12 کی درمیانی رات جو آج رات ہے، اس میں 12 نفل پڑھ لیتا. 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ، 2 کر کے 12 نفل پڑھ لیتا. 6 دگانے اور 12 نفل مختصر سے اگر پڑھ لیتا تو آج بیٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. مجھے ایک دولت مند آدمی نے ایک بڑی کام کی بات کہی، آپ سے کہتا بھی ہوں اور پوچھتا بھی ہوں.
کہا غریب کی بیٹیاں اکثر بخت والی ہوتی ہیں اور مالدار کی بیٹیاں اکثر رول جاتی ہیں. اور مجھ سے کہنے لگے پتہ ہے کیوں؟ غریب ساری عمر غربت میں دیکھ کے بیٹ اللہ بیٹی جوان ہو گئی میں کہاں سے دوں گا، وہ اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے. اور مالدار کو پتہ ہے میرے پاس یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ بخت ہے، یہ مال ہے، یہ اسباب ہیں، یہ وسائل ہیں، اس کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے اور غریب کی نظر مسبب الاسباب اللہ پہ ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پھر تجھے بھی کر کے دکھاؤں گا، اسے بھی کر کے دکھاؤں گا، تجھے تیری بیٹی کا نقشہ یوں دکھاؤں گا، اسے بیٹی کا نقشہ یوں دکھاؤں گا. اللہ والو ساری دنیا کی دولت مال چیزیں اولاد کو دے دیں، ضرور دیں، ان کے لیے ورثہ چھوڑ کے جانا حرج نہیں. بڑے بڑے صحابہ اہل بیت چھوڑ کر گئے ہیں ورثے، انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں ورثے حلال کے، کوئی حرج نہیں. اور کوئی بخت اور نصیب اور مقدر کا کوئی قصہ مجھے بھی سنا دو. یہ بخت اور نصیب کہاں سے ملے گا؟ یہ پیشانی پہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے بخت اور نصیب کہاں سے ملیں گے؟ یہ قصہ مجھے بھی سنا دو کوئی، مجھے یاد نہیں ہے. یہ کہانی سچی مجھے بھی سنا دیں، میں بھول گیا ہوں. یہ کہاں سے ملے گی یہ چیز؟ یاد رکھیے گا یہ فرشی دنیا کی کہانی نہیں ہے، یہ صرف عرشی نظام ہے. یہ جس کے لیے فیصلے ہو جائیں، یہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، یہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، یہ آج کی گھڑی فیصلوں کی گھڑی ہے. سعید ہیں، سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہیں جو اس رات کی قدردانی کرتے ہیں، جو تسبیح خانے کے ایک ایک عمل کو آنکھوں سے چومتے ہیں، بے قدری شک وسوسے مبتلا میں نہیں ہوتے، شک اور وسوسوں میں مبتلا نہیں ہوتے، بے قدری نہیں کرتے. آپ قدر والے ہیں، آپ عظمتوں والے ہیں، آپ وقار والے ہیں. رمضان کی گھڑیوں میں اپنا سارا گھر بار بول کے یہاں آئے ہیں. کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی سعادت ہے جو آپ کو ملی ہے. آپ سارے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے، اولاد کی مقدر کے لیے، اگر اولاد نہیں ہے تو ہمیں اللہ اولاد دے دے اس کے بخت اور نصیب بے اولادی کو دور کرنے کے لیے. ایک بزرگ تھے، وہ سب کو اولاد کے بخت اور نصیب کی دعائیں دیتے تھے. ان میں سے ایسے بھی تھے کہ ان کے کہتے تھے حضرت ہماری اولاد نہیں ہے. وہ کہتے جاؤ تمہاری اولاد کے بخت اور نصیب مقدر اچھے ہوں. کہتے حضرت ہماری اولاد نہیں ہے. کہتے جاؤ تمہاری اولاد کے بخت اور نصیب مقدر اچھے ہوں. کسی نے انہیں سمجھایا درویش کی بات کو سنو سمجھو. وہ کہتے ہیں اولاد، تم کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری اولاد کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ اولاد دے گا تو ان کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں گے. یہ اولاد ملنے کی دعا بھی ہے، اولاد پانے کی دعا بھی ہے. یہ نفل، ہاں میں حیران ہوں، کچھ چند سالوں سے بہت سے اور حضرات نے بھی ان نفل کے بارے میں بتانا شروع کیا. چند سالوں سے، 4-5 سالوں سے شاید میرے خیال میں ساری دنیا کا جو ہے وہ تسبیح خانے کی ترتیب پہ چل پڑی. خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چل پڑے، اچھی بات ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے نفع ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے فائدہ ہو جائے، اور اللہ کی مخلوق کا فیض عام ہو، تسبیح خانے کا فیض عام ہو جائے، خوشی کی بات ہے. کتنے آسان نفل ہیں. 2 نفل پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل ہو اللہ ملا لیں، پھر سلام پھیر لیے، پھر 2 نفل اور پڑھ لیے، پھر 2 نفل اور پڑھ لیے. 12 رکعت نماز نفل خشوع، دھیان، توجہ، لجاہ قلبی، درد اور غم کے ساتھ پڑھ لیا. اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جذبہ کیا ہے. یہ رمضان کی گھڑیوں میں مجھ سے چاہتا کیا ہے اور مانگتا کیا ہے، اور یہ رمضان کی گھڑیوں میں میرے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے. میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچوں کو تھپکی دیتے تھے اور بعضوں کا سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے بچے، اے شباب، اے جوان، اے بچے، رب تیری نسلوں کو تونگری عطا فرمائے. اور تونگری سے مراد روحانیت کی تونگری، روح کی مالداری، روح کی دنیا اور روح کی مالداری. اور
और दुनिया की दुनिया और दुनिया की मालदारी। दुआ फरमाते थे, बच्चों को भी दुआ फरमाते थे, और उस दुआ का फायदा ये होता था, कोई बच्चा बड़ा होके शादी के बाद बे औलाद नहीं रहता था, और फिर औलाद भी होती थी और उस औलाद में तवंगरी भी आती थी, बख्त और नसीब और मुकद्दर भी जाग उठते थे। ये नफिल साल के बाद आते हैं, रमजान की घड़ियों में आते हैं। आप सारा साल इंतजार करते हैं। हफ्ता के बेशुमार लोगों से मैंने ये बात सुनी कि कहा कि बेटी और बेटे की शादी, कहा कोई मसला नहीं, बस रमजान आने दो। रमजान की 11 और 12 की दरमियानी रात में बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, तस्बीह करेंगे, नफल पढ़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, और अल्लाह गैब से असबाब मुहैया कर देगा, अल्लाह गैब से असबाब अता कर देगा। कोई परेशान ना हो। यहां तक कि अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया करता है, ऐसे असबाब बनाता है, जहां जिंदगियां मायूस हो गई हों, जहां हालात खत्म हो गए हों, अल्लाह वहीं से राहें निकालता है, अल्लाह वहीं से रास्ते निकालता है, अल्लाह वहीं से मंजिलें दिखाता है, और जिंदगी में इज्जत और उरूज और शान और शौकत अता फरमाता है। आप नहीं सोच सकते इन नवाफिल की कीमत क्या है, इन नवाफिल की कदर क्या है, इन नवाफिल का वकार और मकाम क्या है। ये जिन्होंने पाया है ना, उनसे पूछें, वो खुश होके बताते हैं, वो सरशार होके बताते हैं, वो अल्लाह की नेमतों की कदरदानी को सामने रख के बताते हैं। हाँ, हम मायूस थे, हमारी जेब में कुछ नहीं था, कोई वसाइल असबाब नहीं थे। अल्लाह का निजाम देखें, 11 और 12 की नफिल पढ़े, रब ने हमें ये दिया और ये अता किया। उनसे पूछें, है कोई बताने वाला? उनसे पूछें कि हमें ये अल्लाह ने अता किया। कौन बताने वाला है जिसको 11 और 12 की दरमियानी नफिल में रब ने अता किया? जी, दो नफिल पढ़े 2 साल पहले, शादी भी हो गई और रिज़्क़ का बेहतरीन अल्लाह ने वसीला बना दिया। दास्तानें हैं इस जिंदगी में फैली हुई, बैठ जाएं अभी, दास्तानें अभी जिंदगी में फैली हुई। कोई शख्स आज तक मायूस नहीं हुआ, मायूस नहीं गया। जिंदगी में हर शख्स को कामयाबी मिली है। यकीन हो, दर्द हो, दिहान हो, और अंदर एक कुढ़न हो, और अंदर दिल सोजी हो कि अल्लाह तू करीम है, तेरे खजाने में कमी नहीं। और याद रखिएगा, अगर औलाद की शादी हो गई है, कभी ना गलत फहमी में मुब्तला हो कि मेरी औलाद की शादी हो गई है। अगली नस्लों के लिए अल्लाह से वारिस मनवा लें, अगली नस्लों के लिए अल्लाह से आगे खजाने खुलवा लें, और अगली नस्लों के लिए अल्लाह के खजानों से दरवाजे खुलवा लें। अगली नस्लों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए अल्लाह से खुलवाने खजाने, उसके दरवाजे। आइंदा नस्लों के लिए जब दरवाजे खुलवा लेंगे, अल्लाह करीम है। अब मिट जाए, खत्म हो जाए, रब तो बाकी है ना, और रब के फैसले बाकी हैं, रब का निजाम बाकी है। और अल्लाह फिर ऐसे करके दिखाता है, अल्लाह ऐसे करके दिखाता है। अल्लाह नस्लों को पाल के दिखाता है, खिला के दिखाता है, वकार, इज्जत, शान और शौकत दे के दिखाता है। अल्लाह ऐसे करके दिखाता है, आप नहीं गुमान कर सकते। आज की रात में एक सजदा फरमाया, जो सजदा देता है रमजान में, एक तरावी का सजदा है, उस पे अल्लाह पाक उसको 70,000 दर्जे बुलंद करते हैं। एक रिवायत, दूसरी रिवायत में एक जन्नत में घर अता करते हैं, जिस घर के अंदर 70,000 दरवाजे होते हैं, हर घर में 70,000 फरिश्ते होते हैं, और हर कमरे होते हैं 70,000, उसमें खाने और नेमतें। लंबी रिवायत है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, जन्नत मिलती है, नेमतें मिलती हैं इन रातों में एक सजदे से। और आप 12 रकात नमाज नफिल में कितने सजदे लेंगे? 24 सजदे। आप सोचे तो सही, मिलेगा क्या? सोचे तो सही, पाएंगे क्या?
और अता कितना होगा और मिलेगा कितना, आप गुमान नहीं कर सकते। इन नवाफिल को ध्यान से पढ़ें, इन नवाफिल को इत्माद से पढ़ें। आपकी शादियां हो गई हैं, अपनी नस्लों को विरसा दे के जाना, अपनी नस्लों को फकीर मंगता भिखारी न छोड़ के जाना, अपनी नस्लों को मंगता और साइल और दर दर का ना 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 ना, उस करीम के हवाले करके जाना जो कफील भी है, वकील भी है, जो हाफिज भी है, हफीज भी है, जो नासिर भी है, नसीर भी है। वो संभालेगा, फिर वो हिफाजत करेगा और वो करके दिखाएगा। वो अपनी अताओं और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखाएगा और कहेगा मैं ऐसे करके दिखाता हूं। तू मांग के गया था आज से 5 नस्लें पहले, 7 नस्लें पहले, नस्लों के लिए मांग के गया था। मैं नस्लों को ऐसे पालता हूं। बस एक काम कर, 11 और 12 के दरमियान में 12 रकात नमाज नफिल जिंदगी भर ना छोड़। फैसला कर ले, या अल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं इन औकात में खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाहे कल्बी और दर्द वाले नफिल नहीं छोड़ूंगा। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, बहन भाई 4-5 हैं, बेटियां बहुत हैं, इनके लिए दुआ फरमा दे। मैंने कहा बेटियों के लिए दुआ अगर कराना चाहता है, हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद पढ़ लिया कर दुआ। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और 11 और 12 के दरमियान के 12 नफिल कभी ना छोड़ना, ये अत्तहियात में ना छोड़ना दुआ, और ये 12 रकत कभी ना छोड़ना। तेरी बेटियां, बेटियों की बेटियां, उनके बेटे और नस्लें, अल्लाह उनको आबाद करेगा, शाद करेगा, बामुराद करेगा, बख्त बुलंद करेगा, रिस्क वसी करेगा और पेशानी के ऊपर अल्लाह शान और शौकत लिख देगा। सारी दुनिया की दौलत दे दी, नस्लों को तवंगर ना देखा, आंखें ठंडी ना हुई। कुर्रता आयुनिम, अल्लाह मेरी नस्लों को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। क्या ख्याल है, उनके नसीब और मुकद्दर अच्छे ना हुए, उनके बख्त बुलंद ना हुए, वो दर दर की ठोकरें खाएं। माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी उस वक्त होंगी जब उनकी औलाद के पास बख्त होगा। कहो, कहते जाओ आमीन। बरकत होगी, दौलत होगी, कामिल ईमान होगा, कामिल इखलास होगा, कामिल अखलाक होगा, कामिल आफियत होगी, नसीब होंगे, मुकद्दर होगी, चमकती पेशानी होगी, दमकता दिल होगा, इज्जत वकार शान और शौकत होगी, सर बुलंदी होगी और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा होगी। अल्लाह करके दिखाता है, अल्लाह अपने खजानों में दे के दिखाता है। हाँ, ये आज के रात का खास अमल है, ये आज की रात का खास अमल है। इस अमल में कभी कोताही ना कीजिएगा, इस अमल को जिंदगी भर अपना साथी बनाएं। अभी अय्याम 20 के रोजे आ रहे हैं, 13, 14 और 15। नफिल रोजे रख के सारी रात सूरत फातिहा पढ़नी है, नंगे सर, नंगे आसमान के नीचे। लेकिन औरतें नंगे सर न हो, और अगर नंगा आसमान नहीं मिलता तो ऐसी भी पढ़ सकते हैं। खाना पीने को दिल चाहे खा लें, हाजत है तो कर लें, बावजू पढ़ें सारी रात। 3 रातें हैं, रोजा तो वैसे ही होगा, रात तो आधी वैसे ही गुजर जाती है और आधी से पहले वैसे ही उठ जाते हैं सेहरी के लिए। 2-4 घंटे होते हैं। अगर सूरत फातिहा पढ़ लें, मैंने अय्याम 20 की सूरत फातिहा पढ़ने वालों को, मैंने अय्याम 20 के रोजे, ये नफली रोजे होते हैं, ये तो फर्ज रोजे हैं। सारी कायनात नफली रोजे रखे, आदम से लेकर आखिरी दम कयामत तक एक फर्ज रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये फर्ज रोजे हैं। जो फर्ज रोजे रख के रात को फातिहा पढ़ेगा, उसकी नस्लों में अल्लाह क्या तमंगरी देगा।
अल्लाह अकबर। अल्लाह, मेरे पास वाकयात है, मैंने कई दफा बताए हैं, बस सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं। ख्याल कीजिएगा, 13, 14 और ये 15 आ रही है, और 13, 14 और 15 में नफली रोजे तो आप रखते होंगे। अब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखें। जब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखेंगे, कमाल है। और फिर आप नफली एतकाफ में हैं, ईद तक एतकाफ का तय किया हुआ है, आपकी तो पढ़ना ही और है। जो तस्बीह खाने से बाहर वाले हैं वो भी पढ़ें, उन्हें भी कमाल मिलेगा, उन्हें भी वही बरकत मिलेगी, उन्हें भी दुनिया आखिरत की खैरें और बरकतें दुनिया के जिस कोने में हैं। लेकिन जो तस्बीह खाने में क़याम कर रहे हैं, उनके कहने ही क्या कि उनको कितनी रहमतें और कितनी बरकतें और कितनी खैरें मिलेंगी और कितनी अताएं मिलेंगी। एक तो ये नफिल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आज के रात में ये तोहफा है। हमारी रूहानियत और अमलियात की किताबों में यहां तक है, ये अमल करना है तो मुंह में मिश्री रख के करना है। लेकिन चूंकि हम नफिल पढ़ते हुए मुंह में मिश्री नहीं रख सकते हैं, वो वजीफा करते हुए है, तो अगर पताशे पिएंगे तो मुंह में कुछ तो मिठास बाकी होगा। तसल्ली से पी के फिर नफिल पढ़ें। ये पताशे बहुत नेमत हैं, मैंने इसको स्पेशल दम किया है और इनको दम किया है, और आपको ये हदिया है और ये तोहफा है। और एक अमल देता हूं आज पताशों पे, एक अमल भी देता हूं पताशों पे। अगर होवल शाफी होवल काफी होवल माफी, क्या? हाँ, होवल काफी, अगर ये पीते जाएं, होवल शाफी होवल काफी होवल, पढ़ते हुए पीते जाएं, बातें भी करें, हंस मजाक भी करें, क्या हर्ज है, पर पीते जाएं और तसव्वुर करें, अल्लाह फला बीमारी, मेरे फला अजीज की फला बीमारी, मेरे फला मोहसिन की फला बीमारी, अल्लाह फला तकलीफ, अल्लाह बे औलादी, अल्लाह मुश्किल, अल्लाह परेशानी, अल्लाह फला रोग है, तू करीम है, आज की रात में ये नेमतें दी हैं, तो ये नेमतें जब दी हैं, ऐ अल्लाह ये मुरादे भी अता फरमा। हाँ, ये मुरादे भी अता फरमा। अगर ये पढ़ते हुए पताशों पे, ये पढ़ते हुए आप पिएंगे, जितनी दफा पढ़ लें तो एक दुगना अजर मिलेगा। पताशों के पीने का अपना एक जायका है, अपना जायका है। तो पताशे गए, पताशों का पीना गया। पहले तो दूध पताशे होते थे, दूध में पताशे डाल के उसका मीठा किया जाता था, और अमूमन मेहमान जो आते थे उनको पताशों वाला शरबत दिया जाता था। ऐसा नहीं दिया जाता था घुला हुआ होता था, पानी में ढाल के पीते थे। मेहमान बातें भी करता रहता था और पताशे भी पीता रहता था, बातें भी, और जी चाहता था और पानी डाल लेता था और पताशे भी पीता रहता था। ये भी अल्लाह पाक ने नेमत आपको अता की है। इस नेमत को भी इंशाअल्लाह ताला आप जाय नहीं करेंगे। इस नेमत को, एक नेमत और जो आज की दरमियानी रात में आपके लिए है, वो बहुत अजब नेमत है। वो एक आपको तोहफा देना चाह रहा हूं, एक तोहफा देना चाह रहा हूं। वो हाजात वाला नक्श है। 29 हुरूफ तहज्जी हैं, गौर से समझिएगा। सारा कुरान जो है ना, सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अलिफ बा ता ये और या तक, ये सारा कुरान हुरूफ तहज्जी का सारा कुरान जो है अलिफ बा से मिलके बना है। सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है, सारा कुरान। ये नक्श है, नक्श है। ये नक्श जो है हाजत वाला, ये 70 औलिया कराम की तलाश है, 70 औलिया कराम की इजाजत है, और 70 औलिया कराम की ये तवज्जो है और उनके तजर्बात में है। हुरूफ तहज्जी का नक्श, अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ तहज्जी का नक्श। और इसके साथ जो स्याही है वो पता है किस चीज की है? उसमें आब जमजम है 1, ज़ाफ़रान है 2, बारिश का पानी है, अर्क गुलाब है, और बहुत सी चीजें हैं। ये स्याही है, ये स्याही है। आपको कलम भी और स्याही भी कितने के मिली? सोचें तो सही। ये 100 रुपए का पेन भी मिलता है, डब्बी देखें कितने की है, ज़ाफ़रान कितने का है, अर्क गुलाब कितने का है। इतनी मजबूत बोतल डब्बी है, इसको 7वीं 10वीं मंजिल से नीचे फेंको तो नहीं टूटेगी।
क्या पता कमाना मतलूब है या खिदमत मतलूब है, या अल्लाह के मामले हैं। मरने से पहले तो मुझ जैसा बंदा वैसे भी मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। ये नक्श बहुत ताकतवर है, बहुत जबरदस्त नक्श है। ये आपके पास नक्श है सारा, अलिफ का नक्श, अलिफ का नक्श। और याद रखना, जो अलिफ का नक्श हम लिखेंगे ना, अलिफ का नक्श, इसकी बैक साइड पे गैन का नक्श आएगा। देखिए जरा, है गैन आएगा ना, अलिफ का नक्श होगा और इसकी पुष्ट पे गैन का नक्श आएगा। अच्छा, इसके जो है, इससे पहले अलिफ के नक्श और गैन का नक्श लिखने से पहले यह रोजाना तस्बीह खाने में लिखवाया जाएगा। और यह कुल कंदर कितने नक्श हैं? हाँ जी, 15 नक्श हैं। ये कुल कितने नक्श हैं? ये अगर एक दिन में 2 लिखे तो कितने नक्श बनेंगे? हाँ जी बताएं। एक दिन में अगर 2 लिखेंगे तो कितने नक्श बनेंगे? एक दिन में 2 लिखेंगे तो 30 नक्श बनेंगे। हैं? एक दिन में 2 नक्श लिखेंगे तो 30 बनेंगे। हाँ जी, ये 15 नक्श हैं। आज अलिफ का नक्श लिखेंगे तो उसके ऐन पीछे गैन का नक्श है। अलिफ का नक्श लिखेंगे तो उसके पीछे गैन का नक्श है। अच्छा, नीचे लिखी हुई छोटी सी लाइन है, ये पेन है, ये रूहानी स्याही है, जाफरानी स्याही है। इस पेन से अपनी हाजत लिखनी है, लेकिन हाजत लिखने से पहले एक जिक्र करना है। मैंने आपको एक खास जिक्र करवाना है। मैंने आपको खास जिक्र करवाना है एक, और मेरे साथ इस नक्श को पुर करने से पहले जिक्र होगा। और याद रखना, यह रोजाना होगा। मुझे उन लोगों पे अफसोस हो रहा जो दूसरे मुल्कों पे बैठे हैं या दूसरे शहरों में बैठे हैं। यह काम ऑनलाइन हो नहीं सकता। जो तस्बीह खाने में है वो मौजूद हैं, और जो तस्बीह खाने में नहीं है उनके लिए मेरी मजबूरी है। और लाहौर वालों के लिए कितनी बड़ी गनीमत और सादत है कि लाहौर वाले रोजाना रात 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे पहले आ जाएं तो तरावियां भी यहीं पढ़ लें, वरना रात 9 बजे आके इस नक्श को पुर करेंगे रोजाना। और रोजाना इस नक्श को पुर करने के बाद बाहर नक्श लिखे हुए खास घड़े पड़े हैं, रोजाना इस नक्श को काटेंगे। इस नक्श को, यानी ये आगे भी पुर करना है, पीछे भी। एक दिन में 2 नक्श पुर करने हैं, और अपनी हाजत लिखनी है, अपनी परेशानी लिखनी है, अपनी मुसीबत लिखनी है। और ये हरूफ तहज्जी के नक्शे, जरा गौर से सुनना। सारा कुरान हरूफ तहज्जी से मिलके बना है। सारा कुरान किससे मिलके बना है? किससे मिलके बना है? हरूफ तहज्जी। और ये हरूफ तहज्जी का नक्श है, हरूफ तहज्जी। आपको याद है, मैंने एक बाबा जी की बात बताई थी। वो कहते थे मैं ठग हकीम हूं। बाबा जी बहुत गालियां देते थे, बहुत गालियां। मैं उनकी खिदमत में जाता था, मेरे साथ बहुत शफकत फरमाते थे, बहुत शफकत। एक बार माई आई, कहने लगे मेरी औलाद नहीं है। मुझे कहने लगे वो कागज ला कहीं से। मैं कहीं से कागज ला? कहने लगे अलिफ से लेकर या तक इसको लिख के दे दे। और कहा देख बेटा होगा, ये भी लूंगा, बकरी भी लूंगा, बकरा भी लूंगा, सूट भी लूंगा, ये भी लूंगा, लू भी लूंगा। मैं कह रहे दूंगी 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 दूंगी। और उनके पास लोग ये चीजें लाते थे। आपको इल्म नहीं है, ये जो हरूफ तहज्जी के नक्श हैं, ये समझ लें, अगर अलिफ लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है, और बा लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है, और ता लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है। और कुरान की तासीर है, और कुरान का कमाल है, और कुरान की ताकत है, और कुरान की कुव्वत है, और कुरान के जलवे हैं, और कुरान के नक्शे हैं, और कुरान की अजमतें हैं, और कुरान का वकार है। और ये अव्वलीन और आखिरीन 70 औलिया सदियों से आजमूदा नक्श चले आ रहे हैं, जो औलिया कराम खास देते थे मुसीबतों के मारूओं को, गम के मारों को, परेशानियों को मारों को। वो मुसीबतें कर्जों में हैं, वो तकलीफों में हैं, वो बीमारियों में हैं, वो इलाज बीमारियों में हैं, वो इलाज मसाइल में हैं, वो मुश्किलात में हैं, वो नाकामियों में हैं। कोई किसी किस्म की मुसीबतें, कोई किसी किस्म की परेशानियां, कोई किसी किस्म का जवाल अगर है ना, तो मेरी तरफ तवज्जो कर लें। फिर अगर किसी किस्म का जवाल है और आप कहते हैं वो बस हल नहीं होता,
तो मेरी दरखास्त है, इस नक्श को पुर करें। जहां लकीर है अभी ना करें, मैं लिखवाऊंगा, अभी ना करें। जहां लकीर है उस पे अपनी हाजत लिखेंगे, जितनी लिखें। और जो लिख नहीं सकते वो उंगली से लकीर फेरते जाएं, उंगली पे ऐसे लिखते जाएं, उंगली पे निशान लगाते जाएं। अल्लाह दिलों के भेद खूब जानता है, अल्लाह दिलों के राज खूब जानता है, अल्लाह दिलों की दुनिया खूब जानता है, अल्लाह आंखों की फरियादें भी जानता है और दिल की आसें भी जानता है, अल्लाह दिल की मुरादें भी जानता है, बहुत ज्यादा मेरा रब जानता है। आपके पास वो पेन है जिस पेन के अंदर रूहानी स्याही है, जाफरान है, गुलाब का अर्क है, जमजम का पानी है, बारिश का पानी है, और भी बहुत सी चीजें इस स्याही में मौजूद है। और ये पेन, जबरदस्त पेन आपको दिया है। और ये पेन आप कभी ना बाजार से इन चीजों की कीमत तो करवा लीजिएगा। बाज लोग होते हैं उनके मिजाज में दूरबीन लगानी होती है कि पता नहीं कितने कमा रहा होगा पीर, इनका तस्बीह खाने का पीर कितना कमा रहा होगा, कितना कमा रहा होगा। तो दूरबीन लगा के ना इन चीजों का रेट ले लीजिएगा कि जाफरान कितने लाख रुपए किलो है, हजार नहीं, कितने लाख रुपए किलो है असली जाफरान, कितने लाख रुपए किलो है। बहुत कमाल नक्श है, बहुत ताकतवर नक्श है। और मिट्टी के घड़े के ऊपर नक्श लिखे हुए हैं। और आप ये रोजाना 2 नक्श लिख के इसको काट के उस घड़े में डाल के आज से चले जाएंगे। आज आपका पहला नक्श होगा। अपनी हाजत लिखेंगे, रोज 2 नक्श लिखेंगे। 2 से मुराद एक आगे और एक पीछे वाला। इसी कागज में देखें दोनों तरफ नक्श लिखे हुए हैं। और आज का नक्श में अलिफ आएगी तो उसकी पुष्ट पे क्या आएगी? गाइन। ये लिखेंगे। और फिर रोजाना एक पूरी रूहानी जमात बैठ के इन घड़ों पे अमल करेगी। आपको मुबारक हो। और मैं खुद इस पे अमल करूंगा। रूहानी जमात बैठ के रोजाना रूहानी जमात बैठ के इन घड़ों पे अमल करेगी। रोजाना बैठ के इन घड़ों पे अमल करेगी, रोजाना बैठ के। और इन घड़ों के ऊपर खास नक्श पहले से लिखे हुए हैं और खास चीजें पहले से लिखी हुई है, बहुत ज्यादा ताकतवर। और मैं इंशाल्लाह खुद इस पे अमल करूंगा। और फिर क्या होगा? रोजाना आप इस पे नक्श डालेंगे तो इसमें कुल रोजाना कितने? 15 नक्श बन जाएंगे ना, 15 नक्श बन जाएंगे। अब रोजाना डालेंगे 27, ये 26 को खत्म हो जाएंगे। 27 की रात को ये घड़े सामने रख के उनकी मुरादें, उनकी आसें, उनकी उम्मीदें लेकर दुआ मांगी जाएगी। मैं क्या करूंगा? पता है क्या करूंगा? इन तावीजों को हाथों में लूंगा और फिर दुआ करूंगा। फिर तावीज हाथे में लूंगा, अल्लाह जिन्होंने मुरादें लिखी हैं, और आप आमीन कहेंगे। और मुझे अपनी दुआएं नहीं, आपकी आमीन पे बड़ा भरोसा है। और 27 को तो दुआ होगी, बड़ी सजदे में दुआ होगी, रो के सजदों में दुआ होगी 27 को। तो ये नक्श बहुत कमाल नक्श है, बहुत जबरदस्त नक्श है। और इसकी तासीर आप गुमान नहीं कर सकते। आए बैठकर इस नक्श के लिए एक इस्म पढ़ लें। वो इस्म है या जलीलो या जमीलो। क्या लफ्ज है? या जलीलो। पढ़े दिल की गहराइयों से इस नक्श का और तमाम हरूफ का तासीर, तमाम हरूफ की ताकत और तमाम हरूफ की कुव्वत और अल्लाह के नाम की इज्जत और अजमत और वकार आज इस नक्श की इब्तिदा करते हैं। और एक चीज फिर सोच लें, यह हरूफ तहज्जी का नक्श है। सारा कुरान इन हरूफ से मिलके बना है। मेरे कमली वाले का फरमान इन हरूफ से मिलके बना है। अस्माए हुस्ना इन हरूफ से मिलके बने हैं। मसनून दुआएं इन हरूफ से मिलके बनी हैं। कुरानी दुआएं इन हरूफ से मिलके बनी
بنی ہیں، مستجاب دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں۔ اللہما جن دعاؤں سے پہلے آتا ہے ان حروف سے مل کے بنی ہیں۔ ربنا جن دعاؤں سے پہلے آتا ہے ان حروف سے مل کے بنی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، یونس علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، داؤد علیہ السلام نے ان حروف سے اللہ سے مانگا، کمری والے نے ان حروف سے مانگا، فاروق اعظم صدیق اکبر نے فاروق ان حروف سے مانگا، عثمان غنی حیدر قرار حسنین کریمین نے ان حروف سے مانگا، کربلا کی دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، مستجاب دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، ان حروف سے مل کے بنی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان حروف سے مل کے بنی ہیں۔ آئے ہم اللہ کو کہتے ہیں مولا، اللہ کو کہتے ہیں مولا یہ حروف وہی ہیں، ان کی تاثیر، ان کی طاقت، ان کی قوت اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ ہم تیرا نام پڑھیں گے اور پھر ان حروف کو کے اندر لائن میں اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی فریادیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں پر کریں گے۔ پڑھیں یا جلیلو یا جمیلو، ڈوب کے پڑھیں، یا جلیلو یا جمیلو، ڈوب کے پڑھیں، یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو۔ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، یا جلیلو یا جمیلو، 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 یا جلیلو یا جمیلو۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ اس نقش پہ پھونک مار دیں۔